अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क भी टीचर्स को सबमिट करवा रहे होंगे। एज यू ऑल नो, इन अवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट what we did, true and false, about equation and expressions and the statements whether they are right or wrong, and in case they were right you were supposed to write true, and if they were wrong you were supposed to write false. So I'm sure कि आपको जो होमवर्क मिला था वो आपने सबमिट करवा दिया होगा टीचर्स को. Now it's time to move forward and today we are going to discuss some examples. So let's get started about the addition and subtraction of algebraic expressions. एंड अब कौन से पेज पे है? दिस इज़ ऑन पेज नंबर 134 ऑफ योर बुक्स. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एग्जाम्पल्स ऑन एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बेसिकली प्यारे बच्चों, आज हमने स्टडी करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की. हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान है. बस यू हैव टू प्रैक्टिस एंड लिसन केयरफुली व्हाट योर टीचर इज सेइंग and telling you and what you have to do in the questions below. All right, which are mentioned on this page 134 of your books. All right, so let's get started. Examples on addition of algebraic expression. Example: add 3x plus 2y and x plus y. आपने क्या करना है? बेसिकली एडिशन करनी है 3x plus 2y की और x and y की. You have to add these two expressions. Horizontal method है एक और एक column method है. There are two methods. Both are very easy. बहुत आसान है दोनों को करना. अब पहले आपसे ये कहा जाएगा कि आपने दोनों को प्रैक्टिस करना है. वजह क्या है प्रैक्टिस की? आप सब जानते हैं ये मैथ्स का सब्जेक्ट है. And math requires practice. The more practice you do, the better you will become, the more command you will get in that particular topic. Is that clear? All right. So example number 1 में basically आपको क्या करना है? 3x plus 2y में ऐड करना है x plus y. आराम से ऐड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि like terms हैं, coefficients हैं basically यहाँ पे same. Coefficients are not same, variables are same, and when variables are same, algebra में हम ऐड कर सकते हैं expression की values को, right? Okay. Now there are two methods. दोनों को practice करना है. आपकी command आपके पास दोनों methods की होनी चाहिए. Horizontal method में आ गया, आपको आना चाहिए. मैं column method में आएगा. You should know how to solve that particular question. All right? So 3x plus 2y bracket close plus x plus y bracket closed. So how you are going to do that? First you are supposed to bring them out from the brackets. Once you will bring them out from the bracket, you will start arranging them. Like terms को एक तरफ कर लीजिए, unlike term को एक तरफ कर लीजिए. Then do what you are supposed to do, add or subtract, and the answer will be there. All right? आपने क्वेश्चन को ब्रैकेट से बाहर लेकर आए. 3x plus 2y plus x plus y. आपने like terms को एक तरफ कर लिया. x x, y y. ऐड किया 3 plus 1. देखें x अगर गिवन है इट हैज़ 1 पावर शो नहीं होती जब भी वेरिएबल अलग है और इस तरीके से ऐड करने के लिए आ गया. यू मस्ट नो दैट इट हैज़ पावर 1 पावर शो नहीं करते, 2 विजिबल होती है. 1 इज़ अंडरस्टूड सी बात है कि इट हैज़ 1 और या उसकी वैल्यू 1 है. ओके, तो 3 plus 1 gave us 4 and 2 plus y gave us 3. तो आंसर क्या आ गया? 4x plus 3y. Easy, very easy, right? Very good. Now let's move to the column method. आइए देखते हैं column method में क्या करना है. column method भी बहुत आसान है. सेम वेरिएबल्स को एक दूसरे के नीचे उतारें, जो डिफरेंट वेरिएबल्स को एक दूसरे के नीचे उतारें. add and subtract, the answer is here. क्या किया आपने? 3x plus 2y एक एक्सप्रेशन लिखी, उसके नीचे दूसरी एक्सप्रेशन लिखी है x plus y. and you did the solution. 3x plus 1 4x and plus 2y plus y 3y. आंसर कितना आसान है ये. इसी तरीके से आपने दूसरी एग्जांपल भी सॉल्व करनी है. 6a plus 8b minus 7b, एक ही एक हो गई. दूसरी एक्सप्रेशन है 2b plus c minus 4a and a minus 3b minus 2c. अब ये आप लोगों को लग रहा होगा, ओहो दिस इज सच अ बिग क्वेश्चन एंड इट इज इम्पॉसिबल टू डू. नो, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू डू. It is very easy. All you have to do is focus a little bit and trust yourself that you can do this question and then it will become easy. All right?
अब आप करेंगे क्या, बेसिकली हॉरिजॉन्टल मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 दोनों सिखाए जा रहे हैं ताकि आपके पास कमांड हो, यू शुड नो दैट। कोई भी तरीका आ जाए, यू नो हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टीचिंग यू दैट। ओके, 6a प्लस 8b माइनस cb माइनस 7c ब्रैकेट क्लोज प्लस, अच्छा हमने इनको ब्रैकेट्स में तोड़ना है। आपको याद होगा हमने पैरेंथेसिस सीखा था जिसमें ब्रैकेट्स में हमें करना होता है वैल्यूज़ को। हमने तीनों को ब्रैकेट में कर दिया, बीच में एक साइन है उनको सेपरेट कर रहा है, ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे प्लस 2b प्लस प्लस c प्लस माइनस माइनस 4a। आपको याद है हमने सिग्नेचर्स को मल्टीप्लाई, आई मीन ऑपरेटर्स को भी स्टडीड, हाउ टू बेसिकली मल्टीप्लाई देम। गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो एंड यू विल नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। नाउ प्लस माइनस माइनस 4a बाहर आ गया, माइनस 4a आएगा बाहर। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट ब्रैकेट को भी बाहर लेकर आना है, प्लस a प्लस माइनस माइनस 3b प्लस माइनस माइनस 2c माइनस 2c। उसके बाद आपने क्या करना है, अरेंज कर देना है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स में, a वाली वैल्यूज एक तरफ, b वाली एक तरफ, c वाली एक तरफ। यू कैन सी दैट इट इज़ वेरी ईजी, एंड आफ्टर अरेंजिंग देम इन देयर लाइक टर्म्स you have to add or subtract, and once you are done with that the answer is here, which is 3a plus 7b minus 8c। ये आपस में add and subtract नहीं होंगे क्योंकि इनकी variables अलग हैं। All right, got it, very good। Now the next method of this question is your homework. Make sure to copy all of these exercises, these 2 examples in your notebook and submit to your teachers on time before she calls you. All right, we will meet in next class. Till then, take care of yourselves and goodbye.